بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم حاضر ہیں تمہارے سامنے سنڈے کلاس کے عنوان پر، اور ہر اتوار تمہارے سامنے ہم گزشتہ 31 اتواروں سے آ رہے ہیں، اور آج 32واں موقع ہے جو ہم تمہارے سامنے ہیں۔ سبق نمبر 32، لیسن نمبر 32۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی دینی باتیں بیان کرتے ہیں، اور اس کا عنوان ہوگا علم و فن سے انسان قیمتی بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 آیتیں، 2 حدیثیں، اور اس کے بعد نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام، اور پھر حقوق میں یتیموں کے حقوق، آداب میں جمعہ کے چند آداب، مسائل میں جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان، اور اس کے بعد اذکار میں شب برات سے متعلق اہم باتیں، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان سوالات اور جوابات۔ بنیادی دینی باتوں میں آج کا عنوان ہے علم و فن سے انسان قیمتی بنتا ہے۔ پیارے بچوں، جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اسکولوں، کالجوں، مدارس، مکاتب وغیرہ میں، یہ سارا کا سارا علم ہی ہے۔ کسی بھی چیز کے معلوم کرنے کو علم کہتے ہیں، کسی بھی زبان کے سیکھنے کو علم کہتے ہیں، کسی بھی فن کے بارے میں پڑھنے اور پڑھانے کو علم کہتے ہیں، کسی بھی مضمون یا سلیبس کے پڑھنے کو علم کہتے ہیں۔ آپ اگر انگریزی پڑھتے ہیں تو وہ بھی علم ہے، اردو سیکھتے ہیں تو وہ بھی علم ہے، عربی زبان پڑھتے ہیں تو وہ بھی علم ہے، اپنے علاقے کی زبان چاہے وہ تیلگو ہو یا کنڈی ہو یا مرہٹی ہو یا تامل ہو یا ملیالم ہو، ہر زبان کا سیکھنا علم ہے۔ آپ اگر مذہبی معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی علم ہے، آپ اگر دنیاوی معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی علم ہے۔ ہر علم کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور ہر قسم کا علم تمہیں سیکھنا ہے۔ اپنے مذہب سے متعلق جو علم تم سیکھتے ہو، یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، حدیث شریف کا پڑھنا، مسائل کا پڑھنا، عربی زبان کے گرامر کا پڑھنا، یہ بھی علم ہے۔ اس علم کو دوسرے تمام علوم پر کئی گنا فضیلت زیادہ ہے، کئی درجے فضیلت زیادہ ہے۔ دنیاوی تعلیم میں سائنس اور ریاضی کا پڑھنا، سوشل اور تاریخی کتابوں کا پڑھنا، انگریزی، ہندی اور اردو اور دیگر زبانوں کا پڑھنا، یہ بھی علم ہے۔ بات چاہے دنیا کی ہو یا دین کی، اس بات کو معلوم کرنے کا نام علم ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والا ہی ہوتا ہے، اس کا مقام اونچا اور بلند ہوتا ہے، اس کا درجہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو بہت ہی سادھے انداز میں سوالیہ لہجے میں یوں بیان کیا گیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ کہہ دیجئے پیغمبر کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہاں سوالیہ انداز کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دیکھنے والا بینا اور نہیں دیکھنے والا نابینا دونوں کے دونوں برابر ہو نہیں سکتے، اسی طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارے علم اور فیوچر، پیارے بچوں، تمہارا مستقبل تمہاری معلومات کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جس طرح سونے اور چاندی کی اپنی جگہ ایک قیمت ہے، اور پوری دنیا میں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی بہت بڑی قیمت ہے، اسی طرح تمہاری بھی قیمت ہے۔
जिस कदर इल्म और फन तुम्हारा बढ़ता जाएगा और तुम्हारी मालूमात में इजाफा होता जाएगा, इसी कदर नॉलेज तुम्हारी अहमियत में तुम्हारी नॉलेज में भी इजाफा होता जाएगा, तो तुम्हारी अहमियत में भी इजाफा होता जाएगा। प्यारे बच्चों, तुम इधर उधर देखो, यानी पूरी दुनिया के इंसानों की जिंदगियों पर, उनके लाइफ पर गौर करो, जिन्होंने दुनिया में पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी मेहनत के साथ इल्म हासिल किया और दुनिया भर की मालूमात हासिल की। इल्म का नशा उन पर चढ़ गया और वो दिन रात एक करते हुए इल्म के हासिल करने और किताबों का मुताला करने में लगे रहे और उन्होंने अपने इस इल्म में पुख्तगी हासिल की, कॉन्फिडेंस पैदा किया और उनको अपने इल्म पर पूरा पूरा एतमाद, कॉन्फिडेंस हासिल हुआ, तो वो दुनिया में बाजी जीत गए। उन्होंने इस दुनिया में अपने इल्म और फन से इनकलाब पैदा किया और उनका नाम हर तरफ रोशन हो गया। तुम्हें भी आज ही से अपने इल्म में, अपने फन में महारत हासिल करना है और जी जान से यह इल्म हासिल करना है। ये बात याद रखो कि तुम जिस कदर मेहनत और कोशिश से और तकलीफ पर तकलीफ उठाकर इल्म हासिल करोगे, उसी कदर तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, किताब और कलम तुम्हारी जिंदगी की शान है। तुम पढ़ो और लिखो और पढ़ते जाओ और लिखते जाओ और जो कुछ पढ़ा और लिखा उसको दिलो दिमाग में बिठाते जाओ और इस इल्म की रोशनी में नई नई तजुर्बात हासिल करने की कोशिश करो। तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में नई चीजों के ईजाद करने की सलाहियत पैदा करना है। इल्म और तजुर्बा आदमी को मुजिद बना देते हैं। तारीख में कितने ऐसे साइंसदान गुजरे हैं, साइंटिस्ट, जिन्होंने अपने इल्म और फन से वो कमाल पैदा किया कि उन्होंने अपने दिलो दिमाग को लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की और वो एक जबरदस्त नतीजे पर पहुंच गए। हमारे मुल्क के जबरदस्त और तारीख बनाने वाले साइंसदान एपीजे अब्दुल कलाम ने साइंस की दुनिया में एक तारीख बनाई और उन्होंने इस मुल्क को मिसाइल अता किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया और अपनी कौम का नाम भी बुलंद किया। तुम्हें भी ऐसा ही एक नामवर तारीख बनाने वाला और कौम और मिल्लत को अतिया और इनाम देने वाला बनना चाहिए। छोटी नीयत, छोटे इरादे, छोटे मंसूबों के बजाय बड़ी नीयत, बड़े इरादे और बड़े मंसूबों को अपनी निगाहों के सामने रखकर काम करना शुरू करो। प्यारे बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुसलमानों का बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। तुम ये मत समझो कि मुसलमानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई काम और इकदाम नहीं किया, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि मुसलमानों का ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत पुराना रहा है। ज्योमेट्री, अलजबरा, फल्कियात यानी आसमानी मालूमात, कीमिया जैसे साइंसी उलूम में बड़े बड़े माहिर अफराद मुसलमानों में गुजरे। अंदलुस, जिसे आज स्पेन कहते हैं, वो एक दौर में मुसलमानों की तहजीब का बहुत बड़ा मरकज था और उस अंदलुस को इल्म के हर मैदान में यूरोप का उस्ताद माना जाता था। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा दूसरे साइंसदान और माहिर अफराद भी गुजरे। आज हम तुम्हें उनमें से चंद माहिरीन की तफसीलात बतलाते हैं। डॉक्टर सैयद जहूर कासिम को हिंदुस्तान के अंटार्कटिका मिशन के लिए जाना जाता है। डॉक्टर सैयद जहूर कासिम हिंदुस्तान के इस तरह के कई मिशन की क़यादत और रहबरी की है, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रहे। समकियात यानी समंदरी मछलियों के सिलसिले में काफी मालूमात का वो खजाना थे। माहौलियात में भी उनकी काफी खिदमत रही। बर्ड, हिंदुस्तान का बर्डमैन डॉक्टर सालिम अली को बर्ड
मैन ऑफ इंडिया का लक़ब दिया गया, यानी परिंदों से मुतालिक जानकारी में वो ऊंचा मुकाम रखते थे। डॉक्टर उबैद सिद्दीकी हिंदुस्तान के जबरदस्त साइंसदान थे, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के कायम करने में अहम किरदार अदा किया। प्रोफेसर E.A. सिद्दीकी ज़राअत के मैदान में जबरदस्त साइंसदान गुजरे हैं। एग्रीकल्चर में उनकी कोशिशों से आला मेयारी चावल की नई नई किस्मों की पैदावार में मदद मिली। कुदसिया तहसीन, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जूलॉजी के प्रोफेसर रही, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान की 2 साइंस अकेडमियों से है। डॉक्टर शाहिद जमील भी मायानाज साइंसदान रहे हैं। हेपेटाइटिस वायरस पर रिसर्च में उन्होंने काबिल तहसीन कारनामा अंजाम दिया है। प्यारे बच्चों, आज हमने उन बड़े बड़े साइंसदानों का नाम लिया। अब तुम ही बताओ कि उन बड़े बड़े साइंसदानों का हमने तुम्हारे सामने क्यों तज़किरा किया? इसलिए कि उन्होंने मेहनत की। उन्होंने सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलते हुए जिंदगी नहीं गुजारी, उन्होंने सिर्फ खेल कूद में जिंदगी नहीं गुजारी। प्यारे बच्चों, याद रखो, तुम अपने आप को किसी भी मैदान का एक माहिर इंसान बना लो। जिस तरह आज हमने उन बड़े बड़े लोगों का जिक्र किया, आज के 50-60 साल के बाद तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, इसलिए कि उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम्हें किसी ना किसी मैदान का इंतखाब करना होगा, जब कहीं चलकर तुम भी अपना नाम और अपनी कौम का नाम और अपने खानदान का नाम रोशन कर सकोगे। प्यारे बच्चों, दीनी बुनियादी बातों से के बाद 2 आयतें और 2 हदीसें तुम्हारे सामने पेश। पहली आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 140 140। रब्बुल इज्जत जलाल ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। इंसाफ करने वाले अल्लाह के महबूब और पसंदीदा होते हैं, और जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला हरगिज पसंद नहीं करते। दूसरी आयत सूरतुन निसा की आयत नंबर 36 रब्बुल इज्जत जलाल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मानने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो लोग इस दुनिया में अपने माल पर या अपने हुस्नो जमाल पर या अपनी सवादियों पर या अपने ओहदे और काबिलियत पर या अपनी शोहरत और मकाम और मर्तबे पर गुरूर करते हैं और लोगों के सामने शेखी बगाड़ते हैं, अल्लाह को ऐसे लोग हरगिज हरगिज पसंद नहीं है। तुम अभी से अपने आप के लिए आजिजी को इख्तियार करो, तवाज़ो इख्तियार करो, गुरूर से अपने आप को बचाओ। 2 हदीसों में आज पहली हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, पैगंबर अय्युल इस्लामी खैर, इस्लाम की कौन सी बात बेहतर है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुतइमुत ताम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खाना खिलाना और जानने वाले और न जानने वाले सबको सलाम करना। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम की कौन सी बात बेहतर है, तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा लोगों को खाना खिलाना, तुम्हारा हर शख्स को सलाम करना जिसको तुम पहचानते हो और जिसको तुम नहीं पहचानते, ये इस्लाम की सबसे बेहतर बात। दूसरी हदीस बैहक़ी की है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बादिउ बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र। सलाम में पहल करने वाला, यानी दूसरों से पहले खुद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने वाला तकब्बुर से पाक। जो शख्स सलाम करने में पहल करता है, यानी किसी की तरफ से सलाम का इंतजार किए बगैर खुद ही जल्दी से सलाम करता है और सबसे पहले सलाम करता है, ऐसा शख्स कभी मगरूर और घुमंडी नहीं हो सकता, वो गुरूर से बिल्कुल पाक। प्यारे बच्चों, हम आते हैं अब प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत रसूल के उस सिलसिले को जारी रखते हुए सीरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज का उन्वान है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद। रसूल रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने रखा और अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। ये नाम सुनकर लोगों ने ताज्जुब से पूछा कि आपने अपने खानदान के सब नामों को छोड़कर ये नाम क्यों रखा? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आसमान पर अल्लाह ताला और जमीन पर उसकी मखलूक उसकी तारीफ करे। मोहम्मद के माने हैं तारीफ किया हुआ। हज़रत आमिना ने नाम रखा तो अहमद उसका ताल्लुक भी हमद ही से है, तारीफ ही से है। ज्यादा तारीफ करने वाला यानी मोहम्मद या रबी अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले, और मोहम्मद उसी से है, हमद ही से तारीफ किया हुआ कि आसमानों में भी उस पैगंबर की तारीफ और जमीन में भी उसकी तारीफ। जितनी तारीफ अल्लाह की जात के बाद इस रुए जमीन पर की गई और की जाएगी वो मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान मजीद में 4 जगह आया है और अहमद सिर्फ 1 जगह आया है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम उन 4 आयतों को तलाश करोगे और अहमद कहां है और मोहम्मद कहां कहां है उसको तुम तलाश करके एक जगह जमा करोगे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम की वजह से है, यानी कासिम के अब्बू अबुल कासिम। अरब में नाम के बजाय कुनियत यानी फुला के बाप से पुकारा जाता है। मसलन बेटे का नाम उमर है तो बाप का नाम अबू उमर कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो मगर मेरी कुनियत पर कुनियत न रखो। एक और हदीस में है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नाम और कुनियत दोनों को जमा न करो। इस तरह के कोई शख्स अपना नाम मोहम्मद अबुल कासिम ऐसा न रखे, इसलिए कि इसमें सरकार का भी नाम और सरकार की कुनियत दोनों आ जाते हैं। इस तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत और नाम दोनों को जमा न किया जाए। प्यारे बच्चों, बंदों के हुकूक के उन्वान पर आज हम यतीमों के हुकूक बयान करेंगे। कुरान मजीद में यतीमों को तकलीफ देने से रोका गया है और उनके साथ एहसान करने की तालीम दी गई है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 83 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों पर शफकत का हाथ फेरा और उन यतीमों के सरपरस्त बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और वो शख्स जो यतीम की जिम्मेदारी संभाले सरपरस्ती करे जन्नत में इतने करीब होंगे। यहां तक कि सरकार ने दोनों उंगलियों को करीब किया। 2 उंगलियां जिस तरह करीब होती हैं थोड़ा सा फासला होता है। पैगंबर के साथ वो शख्स रहेगा जिसने दुनिया में किसी यतीम की कफालत की। यतीमों पर शफकत और मेहरबानी करना चाहिए, जरूरत पर उनकी माली मदद करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतरीन घर वो घर है जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता हो। इब्न माजा। यतीमों को देखकर हमारे दिलों में नरमी पैदा होनी चाहिए। यतीमों पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए और यतीम की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। कुरान मजीद में उन लोगों को डांटा गया है जो यतीमों का इकराम नहीं करते। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। हमें यतीमों का लिहाज रखना चाहिए और उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जिंदगी गुजारने के आदाब में आज जुमे के चंद आदाब बयान करते हैं। पहला अदब, ज्यादा से ज्यादा नेक काम करना और गुनाहों से बचना चाहिए। दूसरा अदब, मिसवाक करना चाहिए। तीसरा अदब, तेल लगाना चाहिए। चौथा अदब, खुशबू लगाना चाहिए। पांचवा अदब, जुमा के दिन सात मुस्तजाबा एक मकबूल घड़ी आती है उसकी जुस्तजू में रहना चाहिए। छठवां अदब, जुमा के दिन फजर में सूरह अल अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह दहर पढ़ना चाहिए। सातवां अदब, सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। आठवां अदब, कपड़ों का कोई जोड़ा खास जुमा के दिन पहनने के लिए रखना चाहिए। नौवां अदब, जुमे की अदायगी में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 10वां अदब, जुमे की नमाज के लिए गुस्ल करना चाहिए। 11वां अदब, बकसरत दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। 12वां अदब, अपने पास मौजूद कपड़ों में से सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। 13वां अदब, जुमा के दिन मस्जिद जल्दी जाना चाहिए। 14वां अदब, जुमा की अजान अव्वल के बाद
तमाम काम छोड़कर मस्जिद पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। 15वां अदब, हो सके तो जुमे की नमाज के लिए पैदल जाना चाहिए। 16वां अदब, तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहिए। अगर खुतबा शुरू हो गया हो तो न पढ़ें वरना पढ़ें। और 17वां अदब, जुमे की नमाज से पहले हल्का नहीं लगाना चाहिए। और 18वां अदब, लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए आगे नहीं जाना चाहिए। 19वां अदब, पहली सफ में बैठने की कोशिश करना चाहिए। प्यारे बच्चों, शरीयत के मसाइल में आज हम जबीरा पर मसह करने का बयान करते हैं। जबीरा किसे कहते हैं? नया लफ्ज तुम्हें महसूस हो रहा होगा। कुछ नहीं, जबीरा वो लकड़ी है जो टूटी हड्डी दुरुस्त करने के लिए बांधी जाती है, पट्टी लगा देते हैं, बैंडेज। मगर यहाँ जबीरा से वो लकड़ी या जख्म की पट्टी या मरहम का फाया, जो कुछ भी हो मुराद है, जिस तरीके से भी, अगर उस लकड़ी या पट्टी का खोलना या फाये का निकालना नुकसान पहुंचाए या सख्त तकलीफ होती हो तो उस लकड़ी और पट्टी और फाये पर ही मसा कर लेना चाहिए। सारी पट्टी पर मसा करना चाहिए, खा उसके नीचे जख्म हो या ना हो। अगर जख्म को पानी से धोना नुकसान न पहुंचाए तो धोना जरूरी है, और अगर पानी से धोना नुकसान पहुंचाए लेकिन मसाह से नुकसान न हो तो जख्म पर मसा करना वाजिब है। और जब जख्म पर मसा करना भी नुकसान पहुंचाए उस वक्त पट्टी या फाये पर मसा करना चाहिए। अज़कार नमाज शब बारात की फजीलत बयान करते हैं। प्यारे बच्चों, इस्लामी महीनों में एक महीना शाबानुल मुअद्दम है, उसकी 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। लफ्ज़ शब फारसी जबान का लफ्ज है जिसके माने हैं रात, और बारात अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने हैं आजादी। इस रात को शब बारात इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब, मदीने में एक खानदान था, उस खानदान में बहुत ज्यादा बकरियां हुआ करती थी। फरमाया कि अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से नजात अता फरमाते हैं। हदीस शरीफ में इस रात की बड़ी फजीलत आई है। शब बारात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों को माफ फरमाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में न पाया तो मैं आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की तलाश में निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नतुल बकी में मिल गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा बख्शिश चाहने वाले लोगों को बख्श देता है और माफ फरमाता है। प्यारे बच्चों, वक्त आ गया है सवालात और जवाबात का, और आज के सबक की आखिरी कड़ी। सवाल हम करते हैं, जवाब देने के लिए तैयार रहो और जवाब देते चले जाओ। पहला सवाल, क्या हमें सिर्फ दीन या सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल करना चाहिए या दोनों किस्म का इल्म हासिल करना चाहिए? अपने दिलो दिमाग से दुरुस्त जवाब दो। दूसरा सवाल, क्या जानने वाला और न जानने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? तीसरी बात, इस बात को कुरान मजीद की आयत से साबित करो कि जानने वाला और न जानने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। चौथा सवाल, तुम्हारा मुस्तकबिल फ्यूचर जिसमें छुपा हुआ है। पांचवा सवाल, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या इजाद किया। छठवां सवाल, किसी भी फन में महारत हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सातवां सवाल, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुसलमानों का ताल्लुक नया है या पुराना। आठवां सवाल, अंदलुस को इल्म के हर मैदान में किसका उस्ताद माना जाता था। नवां सवाल, डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम को हिंदुस्तान के किस मैदान के लिए जाना जाता है। 10वां सवाल, डॉक्टर उबैद सिद्दीकी ने क्या कायम करने में अहम किरदार अदा किया था। 11वां सवाल, वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन के माने और मतलब को बयान करो। 12वां सवाल, कौन सा इस्लाम बेहतर है, हदीस की रोशनी में बतलाओ। 13वां सवाल, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा और मोहम्मद किसने रखा। 14वां सवाल, यतीम की जिम्मेदारी संभालने वाले के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी सुनाई। 15वां सवाल, जुमा के दिन के 5 आदाब बयान करो। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का ये लेसन नंबर 32 सबक नंबर 32 इख्तिताम पजीर होता है और हम तुमसे जुदा होते हैं। अगले इतवार मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।